Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my students of 11th grade to today's class where I'm going to start unit number 5, that is concept of market, and class number 1 whose title is market. So in today's class we are going to understand about the origins of market, how market took forms, what is their role in economic development and growth of society. So we are going to cover up 9 points in today's class. Let's have a look toward those points. Market origins, views of Carnot, historical commerce, evolution of markets, traditional markets, market notions, market definition post World War II, modernized market views, emergence of e-commerce, and market in the digital era. So today's class, we are going to cover up these 9 points. So let's take up point number 1, that is market. Market and its origin. The word market originates from the Latin word marketus. जो बच्चों वर्ड मार्केट है उसे लिया गया है एक लैटिन वर्ड में से जो है marketus, which encompasses the idea of merchandise, where traffic, trade, or any place where business activities occur. तो बच्चों मार्केट अकॉर्डिंग टू द वर्ड मार्केटर्स वो जगह है जहां पर सामान, ट्रैफिक, ट्रेड किया जाता है, ऐसा कोई जगह जहां पर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उसे मार्केट कहा जाता है और इसे लिया गया है लैटिन वर्ड मार्केटस में से. दिस टर्म has evolved over centuries to encompass various aspects of economic exchange and commercial interactions. तो बच्चों सेंचुरीज पहले इसको क्रिएट किया गया और इसके अंदर जो मेजर एक्टिविटीज होती हैं वो है इकोनॉमिक एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस होती हैं, मर्चेंडाइज खरीदा जाता है, बेचा जाता है और बहुत सारी एक्टिविटीज कमर्शियल एंगल पे होती है, कमर्शियल पॉइंट पर होती है. मार्केट में कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां पे पैसे का लेन देन ना होता हो. तो इससे इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलती है और कमर्शियल इंटरेक्शंस भी होते हैं. तो मार्केट इज सच अ प्लेस. इट हैज बीन इनहेरिटेड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड मार्केट. सो ये है मार्केट का ओरिजिन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्यूज ऑफ कार्नोट ऑन मार्केट. In understanding the evolution of markets, the insights of Carnot are particularly illuminating. जो कार्नोट थे उन्होंने बहुत सारी इसके ऊपर बातें कही और उनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया गया. उनको they were taken very very seriously, the words of Carnot. Carnot's views that a market is not confined to a specific place but encompasses an entire region where buyers and sellers interact freely is pivoting. तो कहते कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है मार्केट अकॉर्डिंग टू कार्नोट. वो कहते हैं एक एंटायर रीजन है, एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर बायर्स और सेलर्स फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं और ये बहुत पाइवोटल है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and significant. Important and significant. Carnot's views that a market is not confined to a specified place or specific place. ये एक रीजन है जहां पे बायर्स मिलते हैं, सेलर्स मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं और यही चीज बहुत सिग्निफिकेंट.
This broader perspective highlights that markets are not merely physical locations but encompass a dynamic interaction of economic agents across the regions. ये सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं है, यहाँ पर डायनामिक इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स, ऐसे एजेंट जो इकोनॉमी को पुश करते हैं, ग्रो करते हैं अक्रॉस द रीजन। जो भी लोग यहाँ पर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनका जो मेजर पर्सपेक्टिव होता है वो होता है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इकोनॉमी ग्रो। और वो कैसे होता है? बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स। फोर्थ पॉइंट, कार्नोट्स आइडिया अंडरस्कोर्स the interconnectedness and fluidity of markets where the forces of supply and demand operate seamlessly, transcending geographical boundaries and fostering efficient price mechanism. Very very important. आज अगर हम चाहें तो 1 घंटा इस पॉइंट पर बात कर सकते। इट्स अ वीआईपी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्नोट्स आइडिया अंडरस्कोर, कार्नोट आइडिया एक बात को मद्देनजर रखता है that there is an interconnectedness and fluidity of markets. मार्केट्स आपस में कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, एक मार्केट दूसरी मार्केट के साथ। वेयर द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जिस मार्केट में जिस चीज की जितनी डिमांड होगी उस प्रकार से उतनी ही सप्लाई पहुंचा दी जाएगी। ऑपरेट सीमलेस, और ये काम सीमलेसली होता है। आप देखते होंगे त्योहारों के टाइम पर कैसे आपको किसी भी चीज की कमी नहीं। दीपावली के टाइम पे, कभी नवरात्रे आते हैं या और कोई फेस्टिवल भी आता है, आपको लगता होगा मार्केट्स आर फुल, फुल ऑफ मर्चेंडाइज, फुल ऑफ गुड्स, फुल ऑफ गुड सर्विसेज एज। वो कारण ये है कि ये सब सीमलेसली चलना चाहिए, क्योंकि जहां भी रुकावट आ गई, बिकॉज कस्टमर्स आर एवरीवेयर नाउ। इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मार्केट्स in Delhi NCR, hundreds of markets which are full of hustle and bustle. तो ये काम सीमलेसली होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी रुकावट नहीं है। ट्रांसेंडिंग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड फॉस्टरिंग एफिशिएंट प्राइस मैकेनिज्म, ये बाउंड्रीज से बहुत परे है। कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक स्पेसिफिक मार्केट में जा सकते हैं और दूसरी मार्केट में नहीं जा सकते। यू कैन गो एनीवेयर यू विश लाइक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एफिशिएंट प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है, और जो प्राइसेस आपको मिलते हैं वो एफिशिएंट मिलते हैं, वो एज पर द डेमोग्राफिक्स ऑफ द एरिया उन्हें सेट किया जाता है। तो कार्नोट्स आइडिया अंडरस्कोर द इंटरकनेक्टेडनेस एंड फ्लूइडिटी, आपस में जुड़े हुए हैं एंड दे आर कनेक्टेड, सिंक, वेयर द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्रॉपर्ली चलता रहता है, इट ऑपरेट सीमलेसली एंड इट डजंट फियर द बाउंड्रीज। आप बाउंड्रीज में बांध नहीं सकते हैं। एंड फॉस्टरिंग और प्रमोट करता है एफिशिएंट प्राइस मैकेनिज्म, और यहाँ पे बहुत एफिशिएंट प्राइस को मैनेज किया जाता है। promotes efficient price mechanism. Historical commerce. In ancient civilization, including during the barter system, आपको बार्टर सिस्टम का पता ही होगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ फार्मर, आप गेहूं उगाते हैं, एंड देयर इज अनदर फार्मर जो वेजिटेबल्स उगाता है। तो आपने क्या करना है, आपने गेहूं देनी है और उसके बदले वेजिटेबल्स ले लेनी है। इट्स बार्टर सिस्टम। जो आप उगाते हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट है, और जो वो उगाता है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो को पैसा नहीं एक्सचेंज करना, आपको गुड्स एक्सचेंज करना। दैट वाज बार्टर सिस्टम इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम era. Trade and commerce primarily took place during periodical fairs held at specific locations and times. उस टाइम पर एशियन सिविलाइजेशन में जो ट्रेड और कॉमर्स होता था, वो प्राइमरली होता था ड्यूरिंग पीरियोडिकल फेयर, ड्यूरिंग पीरियोडिकल फेयर्स। पीरियोडिकल फेयर टाइम टू टाइम मेले लगते रहते थे, और वहां पर लोग आते थे, अपना सामान खरीदते थे और चले जाते थे। ऐसे शुरुआत हुई मार्केट्स बनने। ड्यूरिंग दिस टाइम गुड्स वर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स। बार्टर सिस्टम हो रहा है।
विदाउट द इंटरमीडियरी ऑफ करेंसी, और करेंसी एक्सचेंज नहीं होती थी या दी नहीं जाती। The introduction of money as a medium of exchange marked a significant shift in trade dynamics, allowing for more efficient and diverse transactions. बहुत important. This is the point of the day. Entrepreneurship is so, close to my heart. जब इसे पढ़ाता हूँ ना, I completely get lost in the, content. क्या point है? The introduction of money as a medium of exchange. पहले क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते थे, पर अब क्या है, गुड्स के बदले मनी दी जाएगी। मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। देखिए कितना प्यारा फ्रेज है ये, ऐसे मार्क्स लिए जाते हैं। मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ट्रेड डायनामिक्स। ट्रेड करने के तरीके बदल गए, अलाउइंग फॉर मोर एफिशिएंट एंड डाइवर्स ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शन एफिशिएंट कर दी गई। जैसे आप ट्रांजैक्शन कराते हैं, आपने पर्ची लेना शुरू कर दिया, आपने बिल लेना शुरू कर दिया, आपने गुड्स की क्वालिटीज पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तो डाइवर्स ट्रांजैक्शन बहुत एफिशिएंट है। दिस इज हाउ markets they came into light. अब एवोल्यूशन ऑफ मार्केट्स, फिर मार्केट में ग्रोथ भी आया। Markets have played a crucial role in shaping economies, contributing to their strength and stability. but जो मार्केट्स हैं तो इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, स्ट्रेंथन हो रही हैं और स्टेबल हो रही हैं। माल बनेगा, माल बिकेगा, माल बनेगा, माल बिकेगा, सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला लगेगा, तभी इकोनॉमी मूव करेगी। दुनिया भर, दुनिया भर। The concept of a market has evolved significantly over time, reflecting changes in production, distribution and consumer behavior. और जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ये इवॉल्व हुआ है, ग्रो हुआ है, डेवलप हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के तरीके बदल गए, डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके बदल गए हैं, और कंज्यूमर बिहेवियर तो बहुत हद तक बदल गया। आज कहा जाता है, जो दिखता है वो बिकता है। कस्टमर इज अ किंग टुडे एंड एन एम्परर टुमारो। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं जैसे जैसे मार्केट्स डेवलप एंड ग्रो हुई। Different authors and thinkers have offered varied definitions of markets, highlighting their dynamic and multifaceted nature. और different authors ने, different thinkers ने मार्केट की अलग अलग डेफिनेशन तैयार की हैं, highlighting that they are dynamic, they keep changing, they keep changing and they have multifaceted nature. और उनके मल्टीपल नेचर, कोई किसी प्रकार की मार्केट है, कोई सिर्फ कपड़े की मार्केट है, कोई सिर्फ अनाज की मार्केट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। तो जो बहुत सारे चेंजेस आए विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ऐसा होता है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है तो चेंजेस स्टार्ट्स कमिंग एवरीवेयर। सो डिफरेंट ऑथर्स एंड थिंकर्स हैव ऑफर्ड वेरी डेफिनेशंस ऑफ मार्केट्स, highlighting their dynamic and multifaceted nature. Let's move on to the point number 5. Traditional market notions. अब ट्रेडिशनल मार्केट्स क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट्स रेफर टू अर्ली प्रोडक्शन फेजेस वेयर व्हेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर रिलेटिवली स्कार्स। बच्चों, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट्स की बात करें जहां पर गुड्स बनते तो थे, पर उनको बनाया जाता था हाथों से, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो स्लो थी, वो लो थी। तो उस टाइम क्या होता था, जो गुड्स बनाए जाते थे दे वर रिलेटिवली स्कार्स। गुड्स वर relatively scarce. These markets were often localized with limited distribution network, और इन मार्केट की जो रीच थी वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं थी, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कम था। पास पास के लोग लेने आते थे, ज्यादा लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी कि ऐसी मार्केट एग्जिस्ट करती है, ऐसी मार्केट्स होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, जहां जहां तक माल पहुंच पाता था, वही पास के एरियाज थे। पर आज ऐसे हालात नहीं थे। द सरप्लस प्रोड्यूस्ड बाय agrarian economics was traded within immediate communities, forming the basis for early trade practices. और जो भी सरप्लस एग्रीकल्चर की लोग करते थे, वो आसपास ही बढ़ जाया करता था, और इससे जो पहली ट्रेड प्रैक्टिसेस है गॉट स्टार्ट। जो भी
बहुतायत में अनाज उगाया जाता था, वो आसपास से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, वो दूर दूर तक नहीं जाता था। अब तो आपका अनाज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाता है। आपकी जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चली जाती है। आपने कॉमनली देखा होगा कि आजकल ऐसे ऐसे फ्रूट्स मार्केट में है विच आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, यहाँ पे ग्रो ही नहीं होते। They come from New Zealand, they come from Australia. So why it is happening? Because the concept of traditional market has gone over and it has seen new evolution. तो आपने कीवीज भी देखी होंगी मार्केट में। तो these are all foods which belong other countries. Market definition post World War II. The aftermath of World War II witnessed substantial transformation in global markets. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंटेंसिफाइड, इंडस्ट्रीज बढ़ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई, मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मैंने मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर पढ़ाया करता था विच वाज मास प्रोडक्शन। इट वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज एंड द इंटेंसिफाइड एक्टिविटीज। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंटेंसिफाइड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। लोगों को समझ में आया कि एक जगह रहते हुए आप हजारों बार एक चीज को प्रोड्यूस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बैटरीज, एक दिन में लाखों बैटरीज बन रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, रिटेलर तक पहुंच रही है, फिर बिक रही, फिर दोबारा बन रही। पेन्स है, लाखों पेन्स बन रहे हैं, हजारों कंपनीज बना रही हैं, मार्केट तक पहुंच रहे हैं, कुछ बिक जा रहे हैं, कुछ नहीं बिक रहे हैं, बट द प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन। तो वॉल्यूम्स में होती है प्रोडक्शन, एंड सीइंग द पॉपुलेशन कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ यूसेज, दे आर बीइंग मास प्रोड्यूस्ड। तो इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाइटेंड कॉम्पिटिशन। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी ऑब्वियस उसका माल बिकेगा, ऑब्वियस का माल अप्रिशिएट होगा, और उस हिसाब से कंपटीशन ही बढ़ गया। तो बहुत सारी कंपनीज एक ही टाइप के प्रोडक्शन में आ गए तो कंपटीशन ही बढ़ गया। कंज्यूमर्स बिकेम मोर अवेयर ऑफ देयर चॉइसेस। अब कंज्यूमर के पास बहुत बड़ा एक टूल आ गया, वो था दैट दे कैन चूज द प्रोडक्ट। एक कंपनी का पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी का ले ले। उसका पसंद नहीं है, तीसरी कंपनी का ले ले। उसका पसंद नहीं है, 15वीं कंपनी का ले ले। एन नंबर ऑफ कंपनीज आर एंड दे मास प्रोड्यूसिंग द गुड्स। Consumers became more aware of their choices, leading to the emergence of comprehensive legal frameworks to protect their consumer interest. और consumers हैं जो पैसा देते हैं, उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क, लीगल टूल्स भी तैयार कर दिए गए, ताकि जो कंज्यूमर है, जो एक प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, उसके लीगल राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके, उसे मिसट्रीट ना किया जा सके, उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो इसको देखते हुए कुछ लीगैलिटीज भी आ गई, लीगल फॉर्म्स भी बन गए, कानून भी बन गए, विच इज गोइंग टू सेफ गार्ड पीपल्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। कस्टमर कैन बी द वन हु परचेजेस द गुड, कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स द गुड। So market definition post World War II changed a lot. Now modernized market views. Modern perspectives on market transcend physical boundaries. Markets are viewed as dynamic arenas where buyers and sellers interact regardless of geographical constraints. आज मार्केट्स फिजिकल बाउंड्री से दूर जा चुकी है। एक मार्केट हो सकता है एक कंट्री में हो, दूसरी मार्केट दूसरी कंट्री में, and they can connect, they can sell the products and goods to each other. They have become dynamic arenas where buyers and sellers interact, जहां buyers और sellers आपस में interact करते हैं regardless of their geographical constraints. You can easily call the person, you can place the order, you can send them half of the money, they'll send you the goods, then you can send the remaining money to them. This shift in perception emphasizes the importance of communication channels and competitive dynamics in shaping market behavior. और इससे ये पता चलता है कि जो communication channels हैं, they play a significant role in flourishing the markets. अगर आज की डेट में markets flourish हो रही हैं and they are in different countries, so communication channels are playing a very, very important role. And there are n number of communication channels. You can email to them, you can send your orders to them, you can visit to that place, you can talk to them,
You can sign an MOU with them, and all the legalities you can do, and then you can start, sharing the goods across the borders as well. So this shift in perception emphasizes the importance of communication channels and competitive dynamics in shaping market behavior. तो आज की डेट में मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल चेंज। emergence of e-commerce, that is electronic commerce. अब मोबाइल इंटरनेट इज अ मीडियम बन गए हैं। पहले मैं कहूंगा इंटरनेट इज अ मीडियम, देन देयर इज अ मोबाइल व्हिच इज अ मीडियम टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। Electronic commerce, emergence of e-commerce, that is electronic commerce. The advent of the internet and digital technologies has revolutionized commerce, giving rise to e-commerce. तो आज की डेट में e-commerce is booming, is playing a big role, it's playing a significant role. And the reason is because of ease of access. You just scroll one of the sites, आपको एक साइट पे हजारों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे with different varieties. You just have to choose it, place your order, and it will be delivered at your doorstep. There's no need to go outside. This form of business activity involves transactions conducted over computer networks such as internet. E-commerce has expanded market reach. इससे market reach बहुत बढ़ गया है। आप चाहे यहां से प्रोडक्ट मंगाए, विदेश से प्रोडक्ट मंगाए, with a click of a button. E-commerce has expanded market reach, allowing for global transactions and blurring traditional market boundaries. अब आपको अपने पास वाली मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। यू पिक अप योर फोन, सिट ऑन अ सिस्टम और कंप्यूटर, आपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, एंड एज मच एज यू। दैट इज व्हाट ई कॉमर्स, दैट इज व्हाट एवोल्यूशन ऑफ मार्केट्स इज। कहां से हमने स्टार्ट किया और आज हम कहां पहुंचे, ये है ग्रोथ ऑफ मार्केट्स का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट्स इन द डिजिटल ईरा। In today's digital era, markets operate on a global scale. E-business activities encompass a wide range of industrial and commercial transactions facilitated by digital platforms. The digital market landscape is characterized by rapid technological advancements. आजकल जो टेक्नोलॉजी है, it's changing every day, growing every day. Increased connectivity, super fast, internet connections are there, increased connectivities. You can easily get connected to anywhere, to any part of the world. आप यहाँ बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे आप किसी और कंट्री में जूम मीटिंग कर सकते with only a link and the person sitting over thousands of kilometers away. And shift towards online interactions. अब ऑनलाइन इंटरेक्शन होती है, shaping contemporary market dynamics. डिजिटल ईरा में क्या हुआ है, everything has got connected through internet and digits. And this is what, अब देखिए जहां पर भी कनेक्टिविटी होगी ना, वहां पर लोग they'll talk to each other, then they talk about the transactions, and slowly and gradually they will do business, and it will let them help their economy and the countries with which they are doing business, their economy to grow and move. So with these 9 points, we have come to the end of today's class, where we have talked about market origins, views of Carnot on market, historical commerce, evolution of markets, ट्रेडिशनल मार्केट नोशंस, पहले किस प्रकार का प्रोडक्शन होता, अब कैसे बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन किया जाता है, और उसके बेसिस पर द थिंग्स आर बिकमिंग अवेलेबल इजीली टू पीपल। कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मार्केट डेफिनेशन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, industrial revolution has completely changed the scenario of the markets. Now the markets have modernized views, advent of e-commerce, and market in digital era. So all these points tells you a lot about the concept of market. We have started this chapter today, unit today, first class, and I have just discussed what markets are, when they got originated, the views of Carnot, historical commerce, and all these. And do not forget to take up rigorous practice section of Mavericks India Solution, which contains synopsis of today's class, which contains
10 most difficult words along with their meaning in English and Hindi, which contains short question and answers, which contains answers to, which contains 10 objective type questions, with answers, which contains true and false statements with answers, and which contains fill in the blanks with answers. So, bacho, today we have talked about markets. We have shared rigorous practice section with you. And the purpose of creating this rigorous practice section is attend the complete class, see it again and again, and go through this rigorous practice section. And then you are in the capacity of writing very good answers and sharing the points with the students, those who do not know about these concepts. We at Mavericks India Solution, we are committed to providing very good content, detailed classes. There could be a possibility कि हम थोड़ा slow हो सकते हैं, but we are providing you detailed classes, not leaving any stone unturned. We have reached unit 5th now. Very less time is there when we are going to finish off this whole book with you. And on top of it, we have provided rigorous practice section, top 10 questions in every class. So be the part of these classes. Help your friends, those who want to study entrepreneurship, to attend these classes so that even they get benefited. And the best part is we are not charging a single penny from the students to attend these classes. So, bacho, until we meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care and be our subscribe. And always remember, with Mavericks India Solution, you will always gain. Bye bye for now. God bless you all.